یزید نے یہ حکم بھجوایا کہ نواسہ رسول اگر میری بیعت نہ کرے تو اسے قتل کیا جائے۔ فوج یزید چاروں طرف سے اللہ کے رسول کے خاندان کو گھری ہوئی تھی۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ نامحرم کے دن نواسہ رسول اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیں گے۔ بس مولا حسین نے جناب عباس سے کہا، عباس جاؤ یزید کے فوج کے پاس، ان سے کہہ دو کہ ان کے نبی کے بیٹی کے بیٹا کہتا ہے ہمیں ایک رات اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دیجیے۔ جناب عباس جیسے ہی امام حسین کا فرمان فوج یزید کو سنا دی وہ ہنسنے لگ گئے۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ جنگ 9 محرم کو نہیں بلکہ 10 محرم کو ہوگی۔ امام حسین سب عشر تمام ساتھیوں کے اپنے پاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے لوگو، یہ فوج جو تم دیکھتے ہو یہ سب میرے خون کے پیاسے ہیں۔ کل مجھے قتل کیا جائے گا، میرے بہنوں بیٹیوں کو بے پردہ کر کے بازاروں میں پھرایا جائے گا۔ لوگوں، تم نے مدینے سے لے کے یہاں تک میرا بہت ساتھ دیا ہے، اب میں حجت تمام کرتا ہوں۔ جاؤ، چلے جاؤ، اپنے اپنے شہر واپس چلے جاؤ، تمہارے جنت کا تامیم میں ہوں۔ لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ مولا یہ کیا فرما رہے ہیں، آپ کو چھوڑ کے جائیں؟ امام حسین فرماتے ہیں، اے لوگو، تم سب کو شہادت کا مرتبہ اللہ کے رسول سے میں لا کے دوں گا، جاؤ چلے جاؤ۔ جب امام حسین نے سب کے چہرے کو دیکھا تو آپ نے فرمایا، شاید تم لوگوں کو آنکھوں کی شرم نے مارا ہے۔ عباس چراغ بجھا دو۔ بس چراغ کا بجھنا تھا، امام حسین سر کو جھکا کے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر گزری، امام حسین نے فرمایا، عباس چراغ جلاؤ۔ جیسے ہی چراغ جلی، امام حسین دیکھے ایک ایک مولا کی چاہنے والا اپنی تلوار اپنے گردن پہ رکھ کے کہتا ہے، اے نواسہ رسول، ان ظالموں کے بیچ آپ کو تنہا چھوڑ کے جائیں، سب ہم مر جائیں گے تو آپ کی ماں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہمارے جانیں، ہماری بچوں کی جانیں آپ کے قدموں میں قربان میرے مولا، اگر آپ حکم کریں ہم ابھی کے ابھی اپنے آپ کو قتل کر دیتے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا، اے میرے بابا، دیکھ جیسے مجھے ساتھی ملے ایسے آپ کو بھی نہ ملے۔ اے میرے بھائی حسن، دیکھ جیسے مجھ کو ساتھی ملے ایسے آپ کو بھی نہ ملے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، جاؤ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ، کل ہمیں اللہ کے دین میں قربان ہونا ہے۔ بس رات ڈھلنے لگی، 10 محرم کا سورج طلوع ہوا، اذان علی اکبر آئی، نماز میں حملہ ہوا۔ ایک ایک مولا کے چاہنے والا امام کے قدموں میں قربان ہوتا رہا، کبھی حر، کبھی جون، کبھی حبیب، کبھی جناب عباس، کبھی شہزادہ قاسم، کبھی شہزادہ اکبر تو کبھی معصوم علی اصغر۔ برس جب کوئی بھی نہیں رہا، امام حسین خیمے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میرے بہنوں، اے میرے بیٹیوں، اپنے غریب امام کا آخری سلام قبول کرو۔ وویلا کی صدا عام ہو گئی۔ امام حسین فرمایا، زینب، میرے بعد تم کو قید کیا جائے گا۔ پھر آپ ایک خیمے میں آتے ہیں جہاں ایک بیمار سویا ہوا ہوتا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں، علی اٹھو، اپنے بابا کا آخری سلام قبول کرو۔ جب سجاد بستر بیماری سے اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کے بابا خون میں رنگین، ان کا لباس اتنا سدا اور پھٹا ہوا۔ امام سجاد کہتے ہیں، بابا عباس۔ امام حسین فرماتے ہیں، نہر کنارے سو رہے ہیں، علی اکبر ان کو پرچی لگی ہے، ان کی لاش وہاں رکھی ہوئی ہے۔ ایک ایک شہید اللہ کی راہ پر قربان ہو گیا۔ بس اتنے میں زین العابدین کے ساتھ سے اٹھے ہیں اور کہتے ہیں، اے میرے مولا، مجھے جانے دے، میں میدان میں جاؤں۔ تو امام حسین فرماتے ہیں، سجاد، تمہارا امتحان اتنا آسان نہیں بیٹا، ہمیں شہید ہونے دو، ہمارے امتحان یہاں ختم ہونے دو، پھر تمہارا انتقام شروع ہوگا۔ تمہیں اپنی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کے ساتھ بازاروں میں قیدی بن کے جانا ہے، سجاد یزید کی دربار میں خطبہ سنانا ہے۔ امام سجاد ساروں قطار رونے لگے اور نظریں اٹھا کے پوچھنے لگے کہ اے میرے بابا، آپ نے اتنا پرانا لباس ابھی تک کیا ہے؟
इमाम हुसैन ने फरमाया, सज्जाद मुझे पता है कि ये लोग इतने कमजर्ग हैं कि मेरे शहादत के बाद मेरे जिस्म से लिबास उतार देंगे, मेरे लाश को लूटेंगे, याम को लूटेंगे। शायद इस गरीब का ये पुराना लिबास देखकर उनकी गैरत जाग जाए। बस अलविदा कहते हैं और मैदान में जाते हैं। इमाम हुसैन जैसे ही मैदान में आए, सबसे पहले कहे कि ऐ लोगों, पहचानो, मैं तुम्हारे रसूल का बेटा हूँ। मैं वो हूँ जिसको तुम्हारे रसूल अपने कंधों में सवार करता था। मैं वो हूँ जिसको तुम्हारे रसूल सीने में सुलाता था। मैं वो हूँ जिसके लिए तुम्हारे रसूल कहता था, हुसैन वो मिन्नी अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। मैं वो हूँ जब नमाज के दौरान मैं रसूल अल्लाह के पुश्त पर आता था, तुम्हारा रसूल मेरे एहतराम के लिए अपने सजदा को तूल देता था कि ऐसा ना हो कि रसूल अल्लाह सजदे से उठे और मुझे तकलीफ आ जाए। ऐ लोगों, तुमने आज उस हुसैन को रुलाया है, अपने हाथों से दुनिया के बदले दोज़ख को लिखा है। बताओ मेरा क्या गुनाह है? बताओ मैं किसी इंसान का हक गजब नहीं किया है? बताओ क्या मैंने कोई नमाज कज़ा किया है? बताओ मैंने क्या कोई जुल्म किया है? लोग कहने लगे कि तुम्हें इसलिए नहीं मार रहे हैं कि तुम्हारा ना कोई कसूर है, तुम्हें तो इसलिए मार रहे हैं कि तुम अली के बेटे हो। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ लोगों, वो अली जो इस्लाम का मुहाफिज था, आज उस अली को ये सिला दे रहे हो कि उसके औलाद को इस बहन में कत्ल कर रहे हो। बस इतने में शिमर कहने लगा, हुसैन की बात ना सुनो, बस हमला कर दो। इमाम हुसैन पर हमला हो गया। तारीख ने तहरीर कर दिया, आज से पहले ऐसी जंग कभी ना देखी। एक तरफ हजारों की फौज थी, एक तरफ 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन इब्ने अली था। लाश फिन्नार होते रहे, हजारों लोग फिन्नार होते रहे। अली का शेर, अली की जुल्फगार और रसूल अल्लाह की घोड़े पर सवार। बस तारीख ने तहरीर कर दिया कि फौज यजीद भागते भागते कूफे तक जा पहुंची। उमर बिन इंसाद कहते हैं कि शिम्र अभी तक खामोश क्यों हो, हमला क्यों नहीं करते? शिम्र कहता है, मैं जाऊंगा तो मर जाऊंगा। अरे हुसैन की बच्चों से ना लड़ पाए सके तो हुसैन से क्या लड़ेंगे? इसकी रगों में अली का खून दौड़ता है, इनकी रगों में नबी का खून दौड़ता है। जाओ खैमों को आग लगा दो। शिम्र खैमों को आग लगाता है और उमर बिन साद कहता है, हुर्मिला, हुसैन पर तीर चलाओ। हजारों की फौज ने इमाम हुसैन पर तीर चलाना शुरू कर दिया। वो वहां खैमों को आग लगाना शुरू हो गई। इमाम हुसैन कभी फौज की तरफ जाते हैं और कभी खैमों की तरफ जाते हैं। इतने में उमर बिन साद कहता है, जिसके पास जो कुछ भी है वो फेंक के मारे। किसी ने लहजा मारा, किसी ने तलवार फेंक के मारी, कोई भाला मारा, कोई पत्थर मारता रहा। जिसके पास मारने के लिए कुछ भी नहीं था, वो करबला की गर्म मिट्टी उठा के हुसैन की तरफ फेंक कर मारा। बस इतने में आवाज आती है, हुसैन, हुसैन, तू कामयाब हो गया। इमाम हुसैन ने ये जैसे ही ये सदा सुनी, रिज्क को गजे ही पर तस्लीम पर अमरे ही पड़ा और जुल्फगार को नयाम में रख दिया। वो पत्थर, वो लहजे, वो भाले, वो तीर, वो करबला की गर्म मिट्टी इमाम हुसैन की जिस्म मुबारक पर लगते रहे। इमाम हुसैन घोड़े के जीन से जमीन पे, इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक में इतने तीर थे कि रसूल अल्लाह के नवासाने जिन पे थे ना जमीन पे थे, बस तीरों के आसमान में थे। इतने में उमर बिन साद कहता है, हुसैन गिर गया, जाओ जाओ हुसैन का सर कलम कर दो ताकि यह खबर हम यजीद तक फौरन पहुंचाए, हमें इनाम मिले। तो करीब जाता है, इमाम हुसैन की आंखों में रसूल अल्लाह का चेहरा नजर आता है, वो रोता हुआ वापस आ जाता है। इतने में शिम्र कहता है, ये काम मुझसे ही होगा, खंजर दो। खंजर लेके इमाम हुसैन की करीब जाता है। इमाम हुसैन का सर सजदे में, शिम्र आके इमाम हुसैन की गर्दन पर खंजर रखता है और चलाने लगता है। शिम्र देखे कि इमाम हुसैन कुछ पढ़ रहे हैं, वो हंस हंस के सोचने लगा शायद इमाम हुसैन पछता रहे हैं। फिर वो करीब आके सुनने लगा, क्या क्या कह रहा है ये, फिर जाके यजीद को बताऊंगा। जैसे ही कान करीब करके सुनने लगा, इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ अल्लाह कबूल करना, इस दिन तेरे हुसैन ने तेरे दीन के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। ऐ अल्लाह
गवाह रहना, इस दिन नबी की नवासे ने तेरे दीन के लिए सब कुछ फिदा कर दिया है, अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं, अल्लाह की हम्दो सना कर रहे हैं। इतने में इमाम हुसैन ने आंखें खोली और शिमर से कहा, ए बदबख्त, क्या तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? शिमर ने कहा, हाँ मुझे पता है, तो रसूल अल्लाह का नवासा है, अली का बेटा है, फातिमा का बेटा है। इमाम हुसैन कहता, तुम फिर भी मुझे कत्ल करना चाहते हो? शिमर ने कहा, तुम्हें कत्ल करने से मुझे सोना मिलेगा, हुकूमत मिलेगी। इमाम हुसैन ने फरमाया, मैं जन्नत का सरदार हूँ, क्या तुम्हें अपनी जन्नत का फिक्र नहीं? शिमर हंसता रहा और इमाम हुसैन की बाग गले में खंजर चलाने लगा। इमाम हुसैन अल्लाह का जिक्र करते रहे और यूं नवासाए रसूल का सर तन से जुदा हो गया। बस इमाम हुसैन का सर कटना ही था, फौजे यजीद में खुशी की माहौल बरमा हो गई। सब झूमने लगे, नाचने लगे। उमर बिन साद ने कहा, लूटो अहले बैत की खैमों को लूटो। फौज खैमों की तरह बढ़ती है। बीबियों ने मातम करना शुरू कर दिया। फौज यजीद एक एक जिसको लूटता है शुरू करता है। इतने में शिमर देखे एक 4 साल की बच्ची मैदान में बाबा बाबा कह रही है। शिमर करीब गया। उस बच्ची ने सोचा शायद मैं यतीम हो गई हूँ, मेरे सर पे हाथ रखेगा। सिमरन ने देखा उस बच्ची की कानों में बालियां पहनी हुई थी। उसने बालियों को पकड़ा और जोर से खिंचा के निकाल लिया। वो बच्ची करबला की जमीन में बैठ गई और कहने लगी, है दादा अली कहाँ है आप? बस बीबी ओ बेपर्दा हो गई। जमीन करबला में बेवारिस होके बैठ गई। ख़याम जल गए। इतने में उमर बिन साद कहता है, यजीद का हुक्म है कि सबके जिस्म में सर काट के ये मेरे पास ले आओ और लाशों पर घोड़े दौड़ाओ ताकि दुनिया को मालूम हो जाए। यजीद के सामने आएगा, यजीद उसकी बेटियों बहनों को बेपर्दा कर देगा और उसकी लाशों को ऐसे कर देगा कि कोई उसे पहचान भी ना सके। शिमर ने कहा, हाँ लाशों को लगाओ, घोड़ों को तैयार करो। किसी कबीले से आवाज आई कि अकबर की माँ उम्मे लैला हमारी कबीले से हैं, हम अकबर की लाश में घोड़े नहीं दौड़ाएंगे। उमर बिन साद ने कहा, ठीक है, अकबर की लाश जुदा कर दो। किसी ने कहा, जॉन हमारी कबीले से है, उसकी लाश जुदा हो गई। किसी ने कहा, और मोहम्मद हमारे कबीले से है, उसकी लाश जुदा हो गई। किसी ने कहा, हुर हमारे कबीले से है। किसी ने कहा, जनाब अब्बास पे हम घोड़े नहीं दौड़ाएंगे। किसी ने कहा, कासिम जमन की शहजादी का बेटा है, हाँ हम इसमें घोड़ा नहीं दौड़ाएंगे। करबला की तारीख ने तहरीर कर दिया कि जितने भी शहीद थे उनके लिए कोई ना कोई कहने लगा कि इसका ताल्लुक हमारे कबीले से। उन तमाम शहीदों की लाश जुदा हो गई। बस एक गरीब माँ और एक गरीब बाप का बेटा हुसैन जमीन करबला पर पड़ा रहे। किसी ने ये ना कहा कि ये हमारे रसूल का नवासा है, ये हमारे रसूल के बेटी का बेटा है, ये अली मुर्तजा का बेटा है। शिमर ने कहा, बस लावारिसों की तरह हुसैन की लाश पड़ी हुई है। तो पामाल करने को लिए घोड़े तैयार किए थे, बुलाओ सबको। घोड़े तैयार होते हैं, घोड़े दौड़ते हैं। घोड़े कहीं मशरिक से मगरिब को जाते हैं, कभी मगरिब से मशरिक को जाते हैं। इमाम हुसैन की लाश पामाल होती रही। इमाम हुसैन की दाई तसलियां बाई तसलियों की तरह चले गए, बाई तसलियां दाई तसलियों की तरह चले गए। इमाम हुसैन का सीना पुस्त एक हो गया। वहाँ नवाज़े रसूल की लाश पामाल होती रही, वहाँ फौजे यजीद झूम रही है, वह रसूल अल्लाह की बेटियां रो रही है। बस इतनी देर में अंधेरा छा गया। एक 7 हिजरी का 10 मुहर्रम वाहिद दिन था जिसमें अंधेरा वक्त से पहले ही हो गया। सलाम हो शहीद करबला नवासाए रसूल पर, सलाम हो इमाम हुसैन इब्ने अली पर।